بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارہ کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان پریشان نظر آنے لگے۔ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیوں اشارہ کرتی ہے؟ میں سوچ کر پریشان تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی اور جب خالہ آتی تھی اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ کیا خالہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی لہر دوڑی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھی، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی اور اس عمر میں بھی ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار مار کر ادموبہ کر دیتی، اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ خالہ کو اگر کسی اور سے شادی کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے کر جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہنے لگی تھی۔ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں نے ایک نہ مانی۔ اماں تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابا تجھے چھوڑ کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے اماں کے چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی میرے بال جکڑے تھے اور بولی تھی، بدبخت کہیں کی، اپنی ماں پر سوتن لا کر بٹھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے نا میں تیرے ابا سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم نے یہ الفاظ اپنی زبان پر لائے۔ خبردار اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیں؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ اسی وقت آتی تھی جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ شادی والے دن ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اماں اب تک ان کے نکاح میں تھی اور ابا 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تھی تو میں ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے تھے۔ میں ہنوز خالہ کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بکھلا رہی تھی اور اس دن کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا، خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ ابا بالآخر رات 11 بجے گھر سے نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ اماں دوائی کھاتی تھی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی تھی، اس لیے میں پریشان ہو چکی تھی۔ لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی تھی۔ اماں تجھے میری قسم ہے، دروازہ کھول دے، ابا واپس آ گیا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ تیرے سے کبھی نہیں لڑے گا۔ لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔
मुझे अचानक से बेचैनी शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और बाहर जाकर अपनी पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई थी। उसने अपने बेटे से कहकर दरवाजे पर जब जोरदार 4 से 5 ज़रबे लगवाईं तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी अम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अम्मा ने अब्बा और खाला की वजह से ज़हनी अजियत सहते हुए खुदकुशी कर ली थी। मैं अम्मा के बेजान जिस्म से लिपट कर बहुत रोई थी, लेकिन वो इस जहां से जा चुकी थी और जहां वो गई थी वहां से वापसी नामुमकिन थी। अम्मा की तदफीन कब हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। लेकिन अम्मा की मौत के 2 दिन बाद मेरी खाला का एक बार फिर से हमारे घर आना जाना शुरू हो चुका था। सब लोग अम्मा की तबीयत से वाकिफ़ थे, इसलिए किसी ने अम्मा की मौत को अजीब ना जाना था। लेकिन मैं इसी घर में रहती थी और मैं सबसे वाकिफ़ थी। मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया था और वो कोई नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसके साथ इस साजिश में मेरी खाला भी शामिल थी। पहले तो मुझे सिर्फ खाला से नफरत महसूस होती थी, लेकिन अब मुझे अब्बा का चेहरा देखने को भी दिल नहीं करता था। दिन ब दिन मैं अब्बा से दूर होती गई। अब्बा मुझे लाख मेरी पसंदीदा चीज़ें ला कर देता हूँ, लेकिन मैं इसके पास भी बैठना गवारा नहीं करती। और वजह वही थी, वो दोनों मेरी अम्मा के कातिल थे। अब्बा और खाला की इशाराबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी और इस जुम्मे खाला का निकाह था। मुझे ये सब एक ड्रामा ही लग रहा था, लेकिन जब जुम्मे को वाक़ई खाला का निकाह किसी अनवर नामी शख्स से हुआ तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अब्बा और खाला अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो अब इनका रास्ता साफ था। फिर क्यों खाला ने किसी और से निकाह कर लिया था? वो सब मेरे दिमाग का फतूर था। मैं अब तक अपने अब्बा को ही गलत समझती रही थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। अगर अब्बा और खाला के बीच कुछ होता तो अब तक वो दोनों निकाह कर चुके होते। इसका मतलब ये था कि मुझे वो सब गलतफहमी हुई थी। लेकिन अगर अब्बा और खाला एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो फिर वो दोनों इशाराबाजी करने के बाद कमरे में जाकर कौन सी खुफिया गुफ्तगू करते थे? और ये सब अम्मा से जाने के बाद भी जारी रहा था। क्या अब्बा और खाला के नाजायज़ ताल्लुकात थे? और अगर थे भी तो वो दोनों क्यों शादी नहीं कर रहे थे? 1 महीने बाद खाला की रुखसती होने वाली थी। अगले रोज़ खाला फिर से हमारे घर आ गई। मैं जो बावर्ची खाने में खड़ी थी फ़ौरन से बाहर आ गई। अरे खाला, महीने बाद आपकी रुखसती है और आप यहाँ वहाँ घूमती फिर रही हैं। अब आपको चाहिए जाकर कुछ ख़रीदारी करें, जहेज़ का सामान वगैरह अपनी पसंद से लें। मैंने चेहरे पर मजमूई मुस्कुराहट सजाकर खाला को कहा था। जवाबन कुछ देर बाद बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी खाला से नज़रें नहीं चुराई थी। खोट इनके दिल में था तो मैं नज़रें क्यों चुराती? अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आती हूँ। बहुत बुरा हुआ, बाजी को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। इनको तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। पता नहीं बाजी ने ये इंतहाई कदम क्यों उठा लिया। चेहरे पर अफसरदगी दिखाते हुए अफसोस करने लगी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अब्बा के कमरे में जाने लगी तो मैं बेसाख्ता बोल उठी, खाला आप तो मुझसे मिलने आई थी ना, तो अब्बा के कमरे में क्यों जा रही हैं? वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान लाकर आपको सुकून नहीं मिला, जो अब निकाह करने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई हैं। मेरी बातें सुनकर खाला के जाते कदम रुक गए थे। उसने तहरीर समेट कर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। जब बोली तो इसकी ज़ुबान लड़खड़ा सी गई थी। मैं तो तुम्हारे अब्बा का हाल पूछने जा रही थी। बाजी के जाने से काफ़ी उदास हो गए हैं, इसलिए। मैं हैरान थी। खाला ने मेरी इतनी बड़ी बात पर कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि अब्बा की तबीयत का बहाना लगाकर उनके कमरे में जाने लगी थी। तो आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? आप बैठे, मैं अब्बा को यहीं बुलवा लाती हूँ। वैसे भी चाय का वक्त हो चुका है। अब्बा जब बाहर आए तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब्बा को देखते खाला का चेहरा भी खिल उठा था। वो दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। अब्बा को देखकर नहीं लगता था कि इनको अम्मा के जाने का कोई भी गम है, बल्कि वो तो खुश थे। मुझे अब्बा और खाला की कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगर पसंद करते थे तो निकाह क्यों नहीं किया, और अगर निकाह किसी और से कर भी लिया था तो यूँ छुपकर इशारेबाजी और फिर कमरे में बंद होकर क्या गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे। आज तो मैंने इसको रोक लिया था, लेकिन मैं जानती थी मैं इनको रोज़ नहीं रोक सकती। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जानकर रहूंगी कि वो कमरे में जाकर ऐसी कौन सी खुफिया बातें करते हैं जो मेरे सामने या अम्मा के सामने नहीं कर पाते थे। मैंने अपना हर हरबा आजमा लिया था, लेकिन मैं किसी तौर कामयाब नहीं हो पाई थी और ना ही मुझे कुछ पता चल सका था। मैंने कमरे में एक मोबाइल फ़ोन तक छुपा कर रख दिया था, लेकिन इसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों इतनी आहिस्ता बात कर रहे थे।
अगर मैं पास खड़ी होती तो सुनाई ना देता, फ़ोन तो फिर भी दूर पड़ा था। लेकिन इनकी बातों के दौरान इनके चेहरे पर पहले दुख भरे तासुरात थे, इसके बाद गुस्से वाले और आखिर में खुश दिखाई दे रहे थे। मैं इस वीडियो को कई बार देख चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। आखिर इन दोनों की इन अजीब हरकतों को देखकर मैं क्या नतीजा अखज़ कर सकती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और 2 दिन बाद खाला ने रुखसत होकर अपने ससुराल चले जाना था और ये राज हमेशा के लिए एक राज रह जाने वाला था। मुझे खाला और अब्बा का राज पता करने का बड़ा तजस्सुस था, लेकिन वो दोनों शायद मेरी हरकतों से बेखबर हरगिज़ नहीं थे, बल्कि बहुत मोहतात थे। इसी वजह से मेरा कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन ये मेरी खामख्याली ही थी कि सच कभी बाहर नहीं आना था, कि कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन सरका दी थी। इस रोज़ खाला की रुखसती थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मुझे इस वक्त लगा जब खाला की रुखसती से ठीक 10 मिनट पहले अब्बा भी आकर साइड पर बैठ गए और थोड़ी ही देर में वहाँ पर अब्बा का निकाह भी पढ़वाया जा चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, अगर खाला का निकाह अनवर से हो चुका तो अब्बा ने किससे निकाह कर लिया था। मैं इन सोचों में परेशान खड़ी थी जब सारी रस्मों के बाद खाला मेरी तरफ आई थी और मुझे सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बच्ची, मुझसे नफरत ना करना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही हुआ है। खाला के ये आखिरी अल्फाज थे और वो ये अल्फाज कहते हुए गाड़ी में बैठकर चली गई, लेकिन मुझे मज़ीद सोचों के भंवर में तन्हा छोड़कर चली गई थी। इसके कहने का क्या मतलब था कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ? इस बात का मतलब ये था कि अम्मा की मौत का मुझे गम नहीं करना चाहिए, क्या वो इसी की मुस्तहिक थी? लेकिन इसने ऐसा किया ही क्या था जो अम्मा की मौत के कुछ ही वक्त बाद अब्बा दोबारा से अपनी नई दुनिया बसा चुके थे। इसकी बेटी जवान थी और वो इस उम्र में खुद निकाह कर बैठे थे। मुझे अब्बा से तो खाला से भी ज़्यादा नफरत महसूस हुई थी, लेकिन मैं इसे देखना चाहती थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था, और यही सच जानने के लिए मैं दुल्हन के कमरे में चली गई। अब्बा अभी भी बाहर थे, मेहमानों को रुखसत करने में मसरूफ़ थे। मेरे पास यही सही वक्त था कि मैं इस औरत से जाकर सवाल जवाब कर सकूं। आखिर वो क्यों ऐसे मर्द की ज़िंदगी में घुस आई थी जिसकी एक जवान बेटी भी थी? इसकी बीवी की मौत को अभी कम ही वक्त गुजरा था। शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से मेरे अब्बा और खाला ने मेरी अम्मा के साथ वो सब कुछ किया था जिसके चलते अम्मा ने खुदकुशी जैसा सख्त कदम उठा लिया था। मैं कमरे में दाखिल हुई। वो बिस्तर पर आराम से बैठी अब्बा का इंतज़ार कर रही थी। ये जगह मेरी अम्मा की थी, जहाँ वो आज बड़ी शान से बैठी हुई थी। मैंने आगे बढ़ते ही घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी माँ ही बैठी थी और ये सब मेरी आंखों का फतूर नहीं बल्कि वो अम्मा ही थी। मैं गोम-गो की कैफियत में फिर इनको देखती रही। मेरी आंखें बरसने लगी थी। मैं बेसाख्ता इनके गले लगकर बच्चों की तरह बिलक-बिलक कर रोने लगी थी। अम्मा, मुझे लगा तू मर गई है। अम्मा, अब्बा ने किया था, वही धोखेबाज हैं, और इस सब में खाला अब्बा के साथ शामिल थी। मैंने तुझे बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। लेकिन देख अम्मा, अब तो तुझे पता चल गया ना। चल अम्मा, दूर चले जाते हैं, वरना अब्बा फिर से तुझे बीमार कर देगा। मैं दोबारा वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा, तू चल मेरे साथ। मैं छोटी बच्ची की तरह इल्तिजा कर रही थी। तभी अब्बा कमरे में दाखिल हुए और मुझे यूं अम्मा के गले लगकर देखकर मुस्कुरा पड़े। मैंने नफरत से रुख फेर लिया था। अब्बा मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। अम्मा भी अपनी जगह से उठ चुकी थी और मुझे पानी का गिलास पकड़ाया था। इसे पीने के बाद अम्मा और अब्बा ने आपस में नज़रों का तबादला किया था और अम्मा बोलना शुरू हो गई। मैं तेरी माँ माजिदा नहीं बल्कि साइदा हूँ, माजिदा की जुड़वा बहन। मैं और तेरे अब्बा बचपन से एक दूसरे से मंसूब थे, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी माजिदा को तेरे अब्बा से मोहब्बत हो गई। और इसी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो गई जिसने अपनी सगी बहन के खिलाफ साजिश करके मुझे एक हादसे में मरा हुआ साबित करवा दिया। कहा मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और 1 साल बाद तेरे अब्बा से शादी कर ली। मुझे इसने पुरानी नौकरानी के हवाले कर दिया था, जो मुझे ऐसी दवाएं देती थी कि मैं खुद से बेगाना रहती थी। इसके बेटे और शौहर का कत्ल हो गया तो इसको मेरी हालत पर रहम आ गया। इसे लगा ये सब इसके साथ इसलिए हुआ है कि इसने मुझे कैद किया हुआ था। इसने तेरे अब्बा और खाला को ये सब कुछ बताया था। वो दोनों तेरी अम्मा को उकसा रहे थे। इसने अपना सच कबूल कर लिया था, लेकिन इससे पहले इसका सच सबके सामने आता, उसने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा लिया। खाला साइदा की बातें सुनकर मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन मैं इससे नफरत नहीं कर पाई थी। वो मेरी माँ थी।
शायद यही सब इसकी नफसियाती हालत की वजह थी। अपनी बहन को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद हराम मौत को गले लगा गई। वो अना की पक्की अपनी इस दुनिया में बरकरार इज्जत का भरम रखने के लिए हराम मौत मारकर अपनी आखिरत को ख़राब कर गई थी। इसके बाद से मैंने खाला साइदा को सच्चे दिल से माँ तस्लीम किया था और इसने मुझे माँ बनकर दिखाया। आज इसके 2 बेटे हैं, मेरी शादी हो चुकी है। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर अम्मा अपनी किस्मत को मानकर सब्र करती तो शायद आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती। मुझे अपनी सोच पर बाद में काफ़ी अफसोस हुआ। मैंने बहुत गलत सोचा था। हमेशा पहले सच का पता लगाना चाहिए, इसके बाद कोई फैसला कर लेना चाहिए, वरना बाद में हम खुद आईने में देखने के काबिल नहीं रहते। आपको क्या लगता है, अम्मा ने अपनी ज़िद को मोहब्बत समझते हुए जो कुछ अपनी सगी बहन के साथ किया, क्या वो सही था या अम्मा का अंजाम यही होना चाहिए था या खुदकुशी करके सही किया था, वो इसी से मुस्तहिक थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।